تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سے۔ جی، اٹلی کے شہر روم میں ایسوسی ایشن پاکستان اٹلی کی جانب سے پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے فنڈ ریزنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ فنڈ ریزنگ تقریب میں پاکستانی سفارت خانہ روم اٹلی کی جانب سے سفیر پاکستان جوہر سلیم کی خصوصی ہدایت پر ہیڈ آف چانسلری سعدیہ گوہر خانم اور کمرشل کونسلر خالد حنیف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ایسوسی ایشن پاکستان اٹلی کی جانب سے ہیڈ آف چانسلری سعدیہ گوہر خانم اور کمرشل کونسلر خالد حنیف کی آمد پر پھولوں کے گلدستے پیش کر کے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی سے سیاسی، سماجی اور سرکردہ افراد سمیت مقامی لوگوں نے اپنی فیملیوں کے ہمراہ شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا گیا۔ تلاوت کلام پاک کے فرائض سید ارسلان شاہ نے سر انجام دیے، جبکہ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض جنرل سیکرٹری ایسوسی ایشن پاکستان اٹلی محمد رحمان نے ادا کیے۔ تقریب میں چیئرمین ایسوسی ایشن پاکستان اٹلی شاہد بھٹی کے ماموں معروف کاروباری شخصیت طارق شریف بھٹی نے آن لائن شرکت کی اور ٹیلی فونک خطاب کیا۔ تقریب سے مقررین نے باری باری اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ندیم شوکت کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ دیار غیر میں ہم سب پاکستانی اپنے محبوب وطن پاکستان کی پہچان ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہم اپنے ہم وطنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے اور یہ ہے کہ ہم سب مل کے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں کہ ہمارے بہن بھائی جو بغیر گھروں کے اور جو اس مصیبت گھر میں جو اس گرمی میں اور اس مصیبت میں جو ہے ان کے لیے ہمارا مقصد اکٹھا ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں جتنے بھی بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں میں ان سے التماس کروں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آ کے ہمارے ساتھ جو اظہار یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور ہمارے ساتھ جو شامل ہوئے ہیں، یہ ہمارے پورا پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان، ہمارا پاکستان جو ہم سب کی جان، ہماری پہچان، ہمارا پاکستان، ہمارا عزیز وطن ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہم اوورسیز پاکستانی پاکستان سے ہزاروں میل دور یہاں سالوں سے یہاں رہتے ہیں، لیکن اصل ہمارا جو مقصد ہے، ہماری جو جان ہے، ہماری رشتہ داری، ہماری جو ہے وہ ہمارے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ منسلک ہے اور رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ آج ہم نے جو پروگرام، جو ہمارا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم اکٹھے ہوں، جس طرح پہلے ہم ہمیشہ اکٹھے ہوتے رہے، آج بھی اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور جتنا بھی اپنے ہر آدمی نے تقریباً ابھی تک ہم لوگ 2600 یورو جمع کر چکے ہیں، 2600 تک جمع کر چکے ہیں مختلف جگہوں سے۔ اب ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہے 10,000 تک پہنچنے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم اس کو پورا کرنے کے بعد جو بھی فائنل میں ہم اس کو کوشش کریں گے کہ جو بھی ادارہ، آج وہ جاوید صاحب بھی اپنا ایک ادارے بتا رہے تھے مختلف طریقے سے، جو بھی ہمیں کچھ پاکستان نے بھی ہمیں اکاؤنٹ کیے ہوئے ہیں اس میں ہم لوگ جمع کریں گے اور یہ ہمارا مقصد جاری رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے یہاں آپ کا سب وکٹوریہ میں۔ اس کے بعد یہ پاکستانی کمیونٹی کا تھا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پروگرام آ رہا ہوگا وہ انشاءاللہ پاکستان جتنے بھی بزنس مین اور روم سے باہر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہمارے روم کی جو کمیونٹی تھی اس کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد جو اس طریقے سے ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ یہ میں شکریہ گزار ہوں پاکستان ایسوسی ایشن اٹلی کا جو انہوں نے ہمیں انویٹیشن دی اس ایونٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا شریک ہونے کے لیے۔ اور میں تھوڑا سا پرسنلی آپ لوگوں کو جو ہے نا اور زیادہ عرض کروں گا، اپریشیٹ بھی کروں گا کہ آپ جتنے زیادہ ہو سکیں ڈونیشن دیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے شہر میں سیلاب آیا ہوا ہے تو مجھے پتہ ہے وہاں کی کیا صورت حال ہے۔ وہاں پہ سچویشن ایسی ہے کہ روڈ تو چلو لوگ تو بے گھر ہو چکے ہیں روڈ پہ آ گئے، پر روڈ پہ آنے کے بعد بھی صورتحال سے بالکل بھی نہیں ہوئی وہاں پہ۔ وہاں پہ پانی کی وجہ سے گندگی آ چکی ہے، پانی کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، نہ کہ صرف جانور بلکہ انسان بھی وہاں پہ ملوث ہیں ان چیزوں کی وجہ سے۔ تو بس بہت زیادہ گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ لوگ جو ہے نا جتنا دل کھول کے ہو سکے آپ ڈونیشن کریں، کیونکہ اس ٹائم سچ میں پاکستان کو ہمارے نیڈ ہے اور ہم سب سے زیادہ آئی گیس کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ڈیو ٹو دا اکانومی آلسو۔ تو بس سب سے یہی گزارش ہے آپ سب سے۔ ہمارے پاکستان کو ایک ایز اے قوم کی طرح تعمیر ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح یہ سیلاب وغیرہ کی تباہ کاریوں میں ہماری قوم بکھر کے رہ گئی ہے، ٹوٹ کے رہ گئی ہے، ہمیں اگین یونائٹ ہونا پڑے گا۔ اور اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو اپنے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے دعا کو ہونا چاہیے۔
अलिफ ए सीन अलिफ सीन, ये 5 हरूफ का मुखफ़्फ़फ़ एक लफ्ज़ है एहसास। आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ बैठे हुए हैं इसके पीछे यही एक लफ्ज़ है। कहने को ये एक सिर्फ लफ्ज़ है, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाया जाए तो ये एक पूरी हिस्ट्री है जिसकी शुरुआत आक़ाए दो जहां हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शुरू हुई। जब मक्का से मदीना हिजरत करके लोग गए तो उन्होंने महाजरीन और अंसार को इकट्ठा किया, उनके दरमियान भाईचारा पैदा किया। इसके पीछे ये लफ्ज़ का एहसास। तारीख यहाँ ख़त्म नहीं होती, चलती है, इसके नीचे बहुत सारी गहराइयाँ हैं, इसके पीछे बहुत सारे वाक़यात हैं। लेकिन चूँकि हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद की तरफ आते हैं, दियार गैर में बसने वाले हम पाकिस्तानी जहाँ भी हैं, जिस मुल्क में भी हैं, जब भी हमारे मुल्क ने हमें पुकारा, हमने अपने दिलो जान से हम हाजिर हुए। चाहे दिन हो, रात हो, कोई भी वक्त हो, कोई भी बात हो, हम कल भी हाजिर थे, हम आज भी हाजिर हैं और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक हम अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए हर वक्त हाजिर रहेंगे। आज का हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद है, इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है हम सब के सामने है। हम आए रोज़ खबरों में देखते हैं, न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे आता है कि हर जगह पे हमारा मुल्क पानी में डूबा हुआ है। हमारे बच्चे जो हमारे बच्चे हैं, हमारे मुल्क के बच्चे हैं, हमारी माएँ जो हमारी माएँ हैं, हमारी मुल्क की माएँ हैं, हमारी बहनें जो हमारी बहनें हैं, हमारे मुल्क की बहनें हैं, वो इस वक्त आस का एक दीप जलाए हमारी तरफ देख रही है। कोई मेरा भाई, कोई बाप, कोई बेटा आए और हमारी मदद करे। पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया इस वक्त पानी की जद में है, लोग बेघर हैं, लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों बच्चे जो है ना वो भूखे हैं, वो दूध के लिए देख रहे हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं, अपनी अपनी औकात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद भी यही है कि हम अपने उन भाइयों की उम्मीद, उन भाइयों की आस, उसको हम टूटने से बचाएं, उनकी हम मदद करें, उनके लिए जितना हो सकता है हम जो है ना वो कोशिश करें। जिस हद तक हम जो है ना वो कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। हम सब पाकिस्तान के नाम पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज बानी पाकिस्तान की बरसी है, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी एक दुआ हो जानी चाहिए। बाकी जहाँ तक सैलाब वालों का वो है, इसमें मैं तो ये कहती हूँ कि इस वक्त सब सियासतों को छोड़ देना चाहिए। सियासी पार्टी एक साइड पे ये ना कहें कि इसको चंदा देना है तो इसको चंदा नहीं देना। इस वक्त ये सोचें कि वो आवाम जो वहाँ पे डूब रही है उसका कोई कसूर नहीं, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग महलों में बैठे हुए हैं उनकी तो बिल्कुल एक पौधा भी नहीं उठ रहा होगा। ऊपर जो उनकी ज़िंदगी गई है, जिनके पूरे पूरे घर और पूरी पूरी खेती बाड़ी डूब गई है, तो अगर आपके पास 100 यूरो है तो उसमें से 20 दे दें, 1000 है तो उसमें से 200 दे दें, आगे बढ़ के दें, मदद करें। कतरा कतरा दरिया होता है, हम सब मिल के, जैसे कि हमेशा हमने पाकिस्तान के लिए किया है, आगे बढ़ें और इस दफ़ा भी हम दिल खोल के चलता दें। ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद। तकरीब से खिताब करते हुए हेड ऑफ चांसलरी सादिया गौहर खानम का कहना था कि हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं और कई इंसानी जानें ज़िंदगी की बाजी हार चुकी हैं। आज हम सब यहाँ एक नेक मकसद के तहत इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सब की और एसोसिएशन पाकिस्तान इटली की मशकूर हूँ कि आजमाइश की इस घड़ी में उन्होंने ये इंतहाई ज़रूरी कदम उठाया और हम सबको एक छत तले इकट्ठा किया। हमारे मुल्क में खौफनाक सैलाब और गैर मामूली बारिशों की तबाहकारियों के बायस मुल्की मईशत को अब तक 10 अरब डॉलर का नुकसान पहुँच चुका है। 3.5 करोड़ अफराद मुतासर हुए हैं, 1000 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए हैं, जिसमें बेशुमार बच्चे भी शामिल हैं। 10 लाख के करीब मवेशी हलाक हुए हैं और खरबों की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। ये इतनी बड़ी तबाही है कि इस वक्त इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है।
इस कुदरती आफत ने हमारे वतन अजीज़ को कई साल पीछे धकेल दिया है। आजमाइश की इस घड़ी में हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम आगे आएं और दिल खोल कर अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद करें। इटली में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी यूरोप की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। आप लोगों ने हर मौके पर परदेश में रहते हुए भी अपने मुल्क का परचम सरबुलंद रखा है। सफारतखाने पाकिस्तान आपके इस जज्बे की दिल से कदर करता है और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सफ़ीर मोहतरम, सफारतखाने के अफसरान, सफारतखाने का अमला, पाकिस्तान कौंसलेट जनरल मिलान के अमले ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात जमा करवाए हैं। इस बात का मकसद नुमाइश करना नहीं बल्कि आप सबको तरकीब देना है और ये एग्जाम्पल सेट करना है। कुदरती आफात से मुतासरा हमारे हमवतनों को इस वक्त हमारे मदद और सहारे की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान कम्युनिटी इटली खिदमत के जज्बे से सरशार है और आज इस महफिल का इनेकाद इस बात का वाज़ेह सबूत है। आपके एहतियात किसी मुसीबत ज़्यादा ख़ानदान के लिए अंधेरे में रोशनी की किरण और किसी की ज़िंदगी बचाने का ज़रिया साबित हो सकते हैं। सैलाब-ज़दगान की बहाली के लिए एक लंबा अरसा और कसीर सरमाया दरकार है। आप लोगों की मदद से इंशाअल्लाह बहुत सारे ख़ानदान फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप लोग आगे बढ़ें और दिल खोल कर अपने हमवतनों की मदद करें। उनका मज़ीद कहना था कि मैं एसोसिएशन पाकिस्तान इटली को खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने अपने हम वतनों की अमदाद के लिए बेहतरीन मुहिम का आगाज़ किया। मारूफ कारोबारी शख्सियत तारिक शरीफ भट्टी ने अपने ख़ताब में एसोसिएशन पाकिस्तान इटली को सैलाब ज़दगान की अमदाद के लिए 50 लाख रुपए देने का बाकायदा ऐलान करते हुए कहा कि मेरे लिए ये एक फ़ख्र की बात है कि मैं इटली में अब मौजूद नहीं हूँ, लेकिन हम वतनों के एहसास का दरख्त बेहतर नशोनमा पा रहा है। मैं हर उस एसोसिएशन और फाउंडेशन का मशकूर हूँ जो दियारे गैर में रहते हुए अपने हम वतनों को नहीं भूलते। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ना हो तो डोनेशन देने वाला हमेशा डाउट में है। हम एसोसिएशन के बिल्कुल साथ हैं, इंकॉर्पोरेट करेंगे, जो भी ऑप्शन है वो यूज़ करें। एक चीज़ पे मैं बताना चाहूँगा कि एक फंड जो प्राइम मिनिस्टर वाला है, ज़ाहिर है उसके हवाले से लोगों में काफ़ी रिजर्वेशंस थी, उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए गवर्नमेंट ने 2 मैकेनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया। नंबर 1 के जितने भी पैसे आएंगे उन सब की जितनी स्पेंडिंग होगी इंटरनेशनल ऑडिटिंग फर्म से उसका ऑडिट करवा के रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, ताकि आप सबको पता हो कि आपने जो पैसा दिया वो किधर गया। अच्छा, ये अब ज़रा टाइम देगी और अगर साथ साथ कोई ट्रांसपेरेंसी का मैकेनिज्म आ जाता है तो उससे डोनेशन भी ज़्यादा होंगे, आपका ट्रस्ट भी होगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया है कि कल से गवर्नमेंट एक डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च कर रही है। यहाँ आप रोम में बैठ के मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, वहाँ लिखा आ जाता है किस कंट्री से गवर्नमेंट ने या डायस्पोरा ने, हमारी कम्युनिटी ने कितने पैसे भेजे, आगे वो किधर किधर खर्च हो रहे हैं। लेकिन जब आफत आती है तो 2-3 तरीक़ों से आप रिसोर्सेज जनरेट करते हैं। नंबर 1, आपके पास जो पैसे होते हैं वो खुद लगा के अपने रिहेबिलिटेशन पे आप सही होने की कोशिश करते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 120 मिलियन के लगभग जो है वो लगाए हैं, कैश ट्रांसफर्स किए हैं इमीडिएट उन इलाकों में जहाँ पे। साथ ही जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है अथॉरिटी और 4 सूबों में जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कंबल, दवाइयाँ, खुराक, ये सारी चीज़ें पहुँचाई। ये तो हो गया अपने रिसोर्सेज। आफत आने में दूसरा जो हम देखते हैं वो इमीडिएट अपने अजीज़ों अहबाब को देखते हैं, रिश्तेदारों को अपने प्यार, उसमें हमारे सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आ जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी मदद करें, वो भी मदद कर रहे हैं। वो सारा भी उस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएगा कि किधर से कितने पैसे। तीसरा फिर हम देखते हैं कि हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई है ये क्या सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही थी, हमारा अपना कितना कसूर है और किसी और का भी इसमें कसूर है। तो गवर्नमेंट का ये ख्याल और दुनिया भी ये मान रही है कि ये सिर्फ हमारा कसूर नहीं है। क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका भी बड़ा किरदार है। पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में अगर लेटेस्ट डाटा भी देखें तो एमिशन में सिर्फ 0.50% हमारा किरदार है, 1% भी नहीं है। जबकि हमारे जो नेबरहुड में अगर देखें तो एक मुल्क नंबर 1 पे है एमिशन में, एक मुल्क हमारा पड़ोसी जो है वो 3रे नंबर पे है और एक ईरान जो है वो 8वें नंबर पे है। तो अलबत्ता जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका भी किरदार है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा क्लाउड बस्ट हुआ है। अदरवाइज़ पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है कि जहाँ पे रेनफॉल इतना ज़्यादा है उसकी वजह से इतना।
आप इंटरनेशनल रैंकिंग भी देखें, पाकिस्तान बारिशों के अतबार से 145वें नंबर पे आता है, जो बहुत पीछे है। मसला क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट बर्स्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा पानी सिस्टम हैंडल नहीं कर पाता। तो हमने फिर क्या किया कि जिनका कसूर है उनको भी अप्रोच किया है, UN से रिक्वेस्ट की है। सेक्रेटरी जनरल आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में डेवलप्ड कंट्रीज भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी जितना पैसा आएगा वो भी उसकी डैशबोर्ड पे आपको डलना है। तो ट्रांसपेरेंसी डे टू डे बेसिस पे भी आप देख सकेंगे, और जब पूरे ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद रिपोर्ट की सूरत में भी आप ये देख सकते हैं। एसोसिएशन के साथ भी हम हैं, सारे ऑप्शंस हम इनके साथ डिस्कस करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि जो भी आपको रिलायबल सोर्स मिलता है आप उसके थ्रू पाकिस्तान की मदद। फंड रेजिंग तकरीब में बानी एसोसिएशन पाकिस्तान इटली राजा आफ्ताब, चेयरमैन शाहद भट्टी, सदर राजा जुल्फ़कार अली, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रहमान और लोकल बॉडीज़ के अलावा समाजी रहनुमा सैयद अरसलान शाह, कारोबारी शख्सियत अदन कंबो, असलम सुहेल बाबर, रज़ा सईद, चौधरी निसार, अब्दुल वहाब, बाबर वड़ाइश नपोली, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन से सुंदेश कुमार, आयशा सिद्दीक, तबिंदा शाहिद, ज़ोबिया अली और अमरीना अली ने शिरकत की। तकरीब में शरीक पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हम वतनों की इमदाद के लिए मौका पर ही बढ़ चढ़ कर ताउन किया। एसोसिएशन पाकिस्तान इटली अपने टारगेट से बढ़कर फ़ंड इकट्ठा करने में कामयाब हुई। तकरीब के अख्ताम पर बानी एसोसिएशन पाकिस्तान इटली राजा आफ्ताब ने सफारत खाना से आने वाले मेहमानाने ख़ुसूसी को खराज तहसीन पेश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। जब भी कोई ऐसा टाइम आता है पाकिस्तान के लिए तो हम दिल खोल के पाकिस्तान के लिए मदद करते हैं और ये ज़रूरी भी है। इसके बाद में मेरी साथी उन्होंने कहा कि भाई जी ये सही है कि भाई जी फंडिंग बहुत दफ़ा हुई है, जमा भी हुई है, एसोसिएशन ने भी की है, फाउंडेशन ने भी की है। मेरे पास में मेरे ख्याल में आपके आने से पहले बताना चाहता हूँ कि पाक यूनाइटेड नेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंस में आए हैं। उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ में पूछताछ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि ये कदम जो है ना ऑलरेडी 2 आदमियों ने उठाना है, फिर 10 होंगे, फिर 2 लाख भी होंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारा जो आज का जो प्रोग्राम है ये बाकी शहरों से भी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जुड़ेंगे, आपस में मिलके इस प्रोग्राम को इग्नाइज करेंगे। फिर हम जो सबसे पहले है कि हमारे पास में एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, हमारा घर है, हम इन्हें इनके पास जाएंगे, सलाह करेंगे और पूरी सलाह के साथ में देखेंगे कि कौन सा रास्ता सही है और सही तरीके से ये मदद हो सकती है उन लोगों की, उनके हाथों तक मकसद है कि कैसे पहुंचा जा सकता है। तो ये हमारी उम्मीद है कि बेजी ना पूरी मदद करेंगे। और मैं फिर भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के कम्युनिटी को दिया। शुक्रिया। कैमरा टीम के हमरा ब्यूरो रिपोर्ट 39 न्यूज़ HD, रोम, इटली। अहम इश्यूज हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।